Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. My name is Sana Uruj and I am here with my new video number 24 of social studies. As you know that we have done the reading and explanation of lesson number 7 transport, and we have also done the question answers of lesson number 7 transport in my previous videos. So today we are going to do the work page of lesson number 7 transport. For doing the work page, you have to take out your book. You have to take out the page number 40 of your book, work page of lesson number 7 transport. Now exercise A, name the following. In these blanks you have to write down the name of the given vehicle. You have to read the sentence and you have to write down the name of the given vehicle. So the number one, first one is a vehicle with two wheels and an engine. यानी एक ऐसी सवारी है, एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर टू व्हील्स हैं, दो व्हील्स हैं और एक इंजन लगा हुआ है, तो यू ऑल नो कि उससे हम मोटरसाइकिल कहते हैं. Motorcycle is the vehicle with two wheels and an engine. Now number two, a means of transport that flies and can carry many people. So it's an aeroplane. Just you have to write down the answers of the blanks. So the answer of number two is aeroplane. Aeroplane is the mean of transport. Aeroplane is the transport that flies and it can also carry many people from one place to another. Okay, number three, a vehicle pulled by a horse. Okay, the vehicle which is pulled by the horse is, we all know, it's a tanga, or it is also called a horse carriage, घोड़ा गाड़ी इसको कहा जाता है या टांगा भी बोला जाता है. एक ऐसी गाड़ी जो कि हॉर्स के ज़रिए पुल की जाती है या हॉर्स के ज़रिए खींची जाती है, उसे हम कहते हैं टांगा और हॉर्स कैरेज. नाउ मूविंग ऑन टू नंबर फोर, a vehicle with three wheels and an engine. So we all know that it's an auto rickshaw. It has three wheels and it also has an engine. Now number five, a vehicle used by farmer to carry goods and to pull a plough. यानी कि इस एक ऐसी गाड़ी जो कि फार्मर्स किसान इस्तेमाल करते हैं अपनी चीज़ों को कैरी करने के लिए और अपनी फसलों की को मतलब उसकी कटाई करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं बुलोक कार्ट. बैलगाड़ी आपने देखी होगी, उसको हम कहते हैं बुलोक कार्ट, और इट इज़ यूज्ड बाय द फार्मर्स टू कैरी द गुड्स एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू पुल अ प्लाफ. Now moving on to the next exercise, exercise B. Which can go the fastest? Put these in order. Here some names of the vehicles are given and you have to arrange these vehicles in order which is the fastest one. You have to keep it on the first place. फिर उसके बाद कौन सी fastest है, you have to keep that in the second place. ठीक है, यानी जो फास्टेस्ट है उसको आप नंबर वन पे रखेंगे, फिर उससे कम वाली फास्टेस्ट, फिर उससे कम, और जो जो स्लोएस्ट होगी दैट कम्स इन द लास्ट प्लेस. ठीक है, तो फर्स्ट वन पे है कार, नंबर टू इज बस, नंबर थ्री इज स्कूटर, नंबर फोर इज बाइसिकल, नंबर फाइव इज टांगा, and number 6 is bullock cart. Bullock cart is the slowest one and car is the fastest one. सबसे ज़्यादा जो तेज़ मतलब मूव करेगी वो है कार, फिर उसके बाद जो तेज़ मूव करेगी दैट इज़ बस, उसके बाद जो तेज़ मूव करेगी इट्स स्कूटर, then bicycle, then tanga, and the slowest one is bullock cart. Okay, now moving on to the next exercise, exercise C. Here are some road safety situations.
Put a tick against those which you think are safe. Put a cross against those which not. यानी कि कुछ सिचुएशंस आपको दी हुई है नीचे. यू हैव टू पुट टिक इन फ्रंट ऑफ द सिचुएशंस विच यू थिंक इट्स राइट. यानी कि रोड सेफ्टी के अकॉर्डिंग वो सही बात है, उसके आगे आप टिक करेंगे. और अगर वो स्टेटमेंट आपको गलत लग रही है, उसके सामने आप क्रॉस, सही है, क्रॉस करेंगे. तो फर्स्ट वन मैं रीड कर रही हूँ. क्रॉसिंग द रोड फ्रॉम बिहाइंड अ व्हीकल, यानी कि कोई गाड़ी खड़ी है उसके पीछे से अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, इज इट राइट और रॉन्ग? तो इट्स रॉन्ग. सही है, यहाँ पे आप क्रॉस डालेंगे. किसी भी गाड़ी के पीछे से रोड क्रॉस करना ठीक नहीं होता है. इट इज़ अगेंस्ट द सेफ्टी सिचुएशन. नाउ सेकेंड वन, वॉकिंग ऑन द फुटपाथ. फुटपाथ पे अगर आप वॉक कर रहे हैं तो इट्स अ राइट सिचुएशन. तो आप फुटपाथ पे ही वॉक करके हमें वॉक करनी चाहिए. अगर आप रोड पे अगर चल रहे हैं तो फुटपाथ एक ऐसी जगह है जो कि पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाती है. वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, तो आप इसके सामने टिक मार्क करेंगे. नंबर थ्री, क्रॉसिंग द रोड इन हरी. जल्दी जल्दी में रोड क्रॉस करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए जल्दी में. तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. नंबर फोर, गेटिंग ऑन द मूविंग बस. चलती हुई बस पे चढ़ना चाहिए? इट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट. नहीं चढ़ना चाहिए कभी भी. चलती हुई बस पे, चलती हुई गाड़ी पे, चलती हुई बाइक पे आपको नहीं सवार होना चाहिए. नंबर फाइव, प्लेइंग ऑन और नियर अ रोड. रोड पे या रोड के करीब खेलना जो है वो भी आपके लिए बहुत एक डेंजरस सिचुएशन है. तो ये भी एक इसके आगे भी आप क्रॉस लगाएंगे. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डी. आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे और बेटर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, क्योंकि मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ. जस्ट यू हैव टू पुट टिक और क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स जो कि आपको सही लग रही है, उसके आगे आप सही यानी टिक का निशान लगाएंगे. जो आपको गलत लग रही है उसके आगे आप क्रॉस करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे जो सिचुएशंस जो कि रोड सेफ्टी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग है, उनके सामने हमने टिक किया है. और जो उसके अगेंस्ट है उसके सामने हमने क्रॉस किया है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डी. यू शुड क्रॉस द रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग. हमें हमेशा ये बात पता है कि हमें क्रॉस करना चाहिए रोड कहाँ से? जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए. डू यू नो वॉट इट्स लुक लाइक? क्या आपको पता है कि ये कैसी लगती है या कैसी दिखती है? ड्रॉ एंड कलर वन इन द स्पेस बिलो. तो आपको यहाँ पे कुछ सिर्फ एक जो है आपने जेब्रा क्रॉसिंग, ये जो गिवन स्पेस है आपके पास नीचे, आपने यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग ड्रॉ करना है बस. और कुछ नहीं करना है. नीटली आप कलर कर दें ब्लैक और वाइट जो है वो उसको यूज़ करके आपने सिर्फ एक जेब्रा क्रॉसिंग ड्रॉ करना है इस स्पेस में जो कि आपको दिया हुआ है. जस्ट यू हैव टू ड्रॉ इन कलर वन zebra crossing in the space given below. Now here we have completed the work page of this lesson also. So I hope you all have understood all the exercises. So wait for my next video. Till then, thank you and Allah Hafiz.